بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں سندھ حکومت کی، جو کراچی والوں کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ جناح ایونیو پر ریڈ لائن BRT کا کام 3 مہینے میں مکمل کرنے کا حکم۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا ریڈ لائن منصوبے کا دورہ، کہا ریڈ لائن پہلا منصوبہ ہے جو بایو گیس پر چلے گا۔ سندھ حکومت نے BRT منصوبہ مکمل کرنے کی ٹھان لی۔ سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے ریڈ لائن منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ریڈ لائن BRT کا معائنہ کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ 2022 میں کام شروع ہوا تھا، تاہم مٹیریل مہنگا ہونے کے باعث کام رک گیا تھا۔ نگراں حکومت بھی آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی۔ ہائپر انفلیشن پورے پاکستان میں آئی اور اس وجہ سے پھر کانٹریکٹرز کے ایشوز تھے کہ جی سیمنٹ سریا جتنے بھی بلڈنگ مٹیریل مہنگے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کارپوریشن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بالکل آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی اور ان کو احساس نہیں تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سفری سہولیات پہلی ترجیح ہے۔ دن رات کام کر کے ریڈ لائن منصوبے کو جلد مکمل کروائیں گے۔ شرجیل میمن نے جناح ایونیو کا کام 3 ماہ میں مکمل کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ ہم جناح ایونیو پہ کھڑے ہیں، یہ جناح ایونیو کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انڈر پاس بھی ہے، یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جناح ایونیو جو ہے یہ 3 ماہ کے اندر مجھے کمپلیٹ کر کے دیں، آج کی تاریخ کے اندر، تاکہ یہ آپ کے پورے جو نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے سے جو آپ کی ٹریفک آتی ہے M9 سے، وہ یہیں سے کراچی میں اس کو انٹری ملتی ہے۔ شرجیل میمن نے ثانیہ 9 مئی پر بھی کھل کر بات کی، واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ KP کے اسلام آباد چڑھائی سے قبل 9 مئی واقعے میں ملوث افراد کا حشر دیکھ لیں۔ پیپلز پارٹی کا لیاری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بڑھتے جرائم پر جلد قابو پانے کے لیے پرعزم، بولے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ہدایات ہیں کہ نوکریوں کے سلسلے میں لیاری کا خیال رکھو۔ اکبر ناگوری مرحوم کے سال ثواب کے لیے ککری گراؤنڈ میں قرآن خوانی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اکبر ناگوری مرحوم کو خراج عقیدت، شعیب مختار کی رپورٹ۔ پارٹی کراچی ناگوری کے بھائی اکبر ناگوری کی 9ویں برسی کی تقریب لیاری ککری گراؤنڈ میں منعقدہ تعزیتی اجتماع میں قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا اہتمام، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، ہم اکبر ناگوری کی شہادت کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے لیاری کے مسائل حل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے شہداء کو اور ان کے ورثاء کو نہیں بھولے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان شہیدوں جن کی وجہ سے ہماری پارٹی قائم و دائم، اور اس سے بہتر مثال شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وجہ سے کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو بھی شہداء ہیں ان سب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے، کراچی کے جیالوں نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج یہ پارٹی قائم و دائم ہے۔ میں یہ بات ہر جگہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ بلا شبہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکنوں تک کی پورے ملک میں بہت جدوجہد ہے، بہت قربانیاں ہیں، لیکن اگر اس پورے ملک میں ہم کوئی ایک شہر نکالیں کہ کہاں لوگوں نے سب سے زیادہ جانیں قربان کی ہیں یا قربانیاں دی ہیں، تو وہ شہر پھر کراچی آتا ہے۔ پورے پاکستان میں جتنے شہر ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے کارکنوں کی جتنی جدوجہد اور قربانیاں ہیں، کراچی ان میں سیر فہرست ہے، سب سے نمبر 1 ہے۔ تقریب سے پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ اپنے شہداء کے لواحقین کو کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیمرہ مین جانشیر بلوچ کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ تھر کا کوئلہ گیسیفیکیشن کے لیے انتہائی موضوع قرار، کوئلہ سے کھاد، گیس اور ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر توانائی سندھ کی زیر صدارت اجلاس، ناظر حسین شاہ بولے، محکمہ توانائی سندھ کول اتھارٹی کے ماہرین افسران پر مشتمل وفد چائنا بھجوایا جائے گا۔ گیسیفیکیشن کی صوبائی سطح پر پالیسی کے حوالے سے درپیش مسائل پر وفاق سے رابطہ کریں گے۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ کول اتھارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں تھرکول بلاک 2 کے کوئلے کے سیمپل کی جنوبی افریقہ سے حاصل شدہ رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری توانائی کاظم علی جتوئی اور ڈی جی سندھ کول اتھارٹی نے اجلاس میں بریفنگ دی۔
गैसिफिकेशन की सूबाई सतह पर पॉलिसी बनाने के गुज़श्ता इजलास के फैसले पर भी तफसीली गौर किया गया। नाज़िर हुसैन शाह ने कहा कि कोयले से खाद, गैस और डीजल हासिल की जा सकती है। घर का कोयला गैसिफिकेशन के ज़रिए पावर जनरेशन के लिए मौजू तरीन और बेहतरीन करार दिया है। चीन जाने वाला वफ़द चाइना के जदीद गैसिफिकेशन प्लांट का जायज़ा लेगा और इस बात का भी जायज़ा लेगा कि गैसिफिकेशन का अमल मुआशी और कमर्शल बुनियादों पर मौजू है कि नहीं। MQM पाकिस्तान ने वफाकी और सूबाई शैडो बजट की तैयारी पर काम तेज़ कर दिया। MQM के तश्कील करदा एडवाइजरी बोर्ड ने निचली सतह के दुकानदारों और ताजरों से मुलाकातें शुरू कर दी। बोर्ड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनतकारों और कारोबारी तंजीमों से भी मुलाकात करेगा। MQM के तैयार करदा शैडो बजट में वफाकी सिंध हुकूमत को इक़्तिसादी तरक्की, महसूलात पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। बजट में दरामद बिल कम करने, IT सेक्टर की मराहत भी शामिल होंगी। MQM की जानिब से रवां माह के इख्तिताम पर शैडो बजट पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान हाउस में सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, जिसमें शैडो बजट की तैयारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई थी। अरकान असम्बली हल्कों के मसाइल के हल के लिए काविशें करेंगे। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, अरकान असम्बली कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के अवामी मसाइल असम्बली में उठाएं। बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा इजलास में और कौन कौन से अहम फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली का अहम इजलास मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में हुआ है। इस इजलास में मरकजी कमेटी के अरकान सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसीम जलील, गवर्नर सिंह कामरान खान तैसूरी व दीगर भी शरीक थे। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी व माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है, जबकि स्ट्रीट क्राइम के वाकयात के हवाले से सिंध हुकूमत और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से होने वाली मुलाकात के मुंदरजात भी तमाम जो अरकान हैं उनके सामने बयान किए गए हैं। इजलास में कराची में जारी K4 समेत वफाकी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है, जबकि कराची में पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात की अबतर सूरत हाल के मसाइल के हल के लिए भी जो है मुशावरत की गई है। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से अरकान असम्बली को अपने हल्कों के मसाइल के हल के लिए शबो रोज कोशिशें तेज करने की हिदायत जो है वो दी गई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सूबाई अरकान असम्बली सिंध की सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दे और अरकान कौमी असम्बली कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के अवामी मसाइल असम्बली में उठाएं। अवामी मसाइल असम्बली में उठाएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। टैक्स पर टैक्स और सहूलियात ना होने के बराबर, शहर कायद के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम। सुजानी टाउन सेक्टर 7C में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। बोले, भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं मगर बिजली नहीं मिलती। हुक्काम बाला कुछ रहम करें, बुनियादी सहूलतें फराहम करें। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सुजानी टाउन सेक्टर 7C में बिजली नायाब हो गई। उमूर खानादारी में खलल से शहरी अजियत में मुब्तला। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराम की जाती है। शदीद गर्मी में बच्चे बिलबिला उठते हैं। अक्सर व बेशतर रात भर बिजली नहीं होती, रातें जाग कर गुजारना पड़ती हैं। घंटे आती है, 5 घंटे लाइट नहीं होती है यहाँ पर। पूरा दिन पूरी रात समझो कि 1 बजे लाइट जाती है, आती है, फिर 1 घंटे दोबारा लाइट चली जाती है। अब इतने हम छोटे बच्चों को गर्मी के अंदर कहाँ लेके जाएं, ये बताएं हमारे को। लाइट तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर। 1 घंटे के लिए दी जा रही है बिजली और 6-6 घंटे घूमे। कभी कभी तो सारी रात जो है लाइट नहीं है। टोटल जो है इधर 3 घंटे लाइट हमें बामुश्किल मिलती है, उसके बाद लाइट का पता ही नहीं है। और केसी वालों को फ़ोन करो, बोलते हैं फला जगह काम हो रहा है, फला जगह काम हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाती। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तजबीह ना दी जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजली की तवील लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों से ताजिर परेशान। सदर अली मार्केट ताजिर एसोसिएशन सईद खान कहते हैं कि 12 घंटों में सिर्फ 3 घंटे बिजली मिलती है और बिल 16,000 रुपये आता है। शिकायत के बावजूद मसला जूं का तूं है। मार्केट को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा भी कर डाला। काविश मेमन की रिपोर्ट।
बिजली की लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल ताजरों का इम्तिहान लेने लगे। ली मार्केट के ताजरों का शिकवा है कि पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे बिजली फराम की जाती है, इसके बावजूद हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। 12 घंटे की हमारी दुकान की ड्यूटी होती है, उसमें हम लोगों को 3 घंटे की लाइट मिलती है। अब इनमें हम लोगों दुकानदारों ने अपनी मदद आप तहत हम लोगों ने ये यूपीएस के खर्चे किए हैं, वो लगाए हैं। वो यूपीएस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे चलेंगे। उस पर भी कई इलेक्ट्रिक वाले नाराज़ है कि ये कहते हैं कि भाई ये आप लोगों ने कुंडे के बिल लगाए, कुंडे लगाए आप लोगों ने, उसके बिल हम आपको पे करेंगे। बिजली हमको दे रहे तकरीबन 9 घंटे जो है लोड शेडिंग है यहाँ पे। ली मार्केट ताजर एसोसिएशन के सदर सईद खान बोले, मार्केटों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। पूरी कोशिश होती है कि 100% लोगों को जो बिल देते हैं वो पे करें। एक आध अगर रह जाता है तो लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं, बिल हम पे करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं और हमारे पास उसकी सबूत भी मौजूद है। लेकिन हमने बार बार मुतालबा किया उनसे कि भाई यहाँ लोड शेडिंग फ्री कर दो, ये कारोबारी इलाका है, ये कारोबार होता है, यहाँ पर यहाँ लोग आते हैं, लोग कारोबार करते हैं, तो हम लोग कारोबार कर रहे हैं। जब हम कारोबार करेंगे तो हम टैक्स भी देंगे, वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग के बाइस कारोबार मुतासर हो रहा है। बिजली की बिला तातुल फरामी के लिए इकदाम किए जाएँ। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद ने बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा को खत लिख दिया। मंगल को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की जानिब से नेपरा को लिखे गए खत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कहा है कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो गए, ये इदारा अभी तक लोड शेडिंग ख़त्म नहीं कर सका। कराची के अवाम बिजली के बिल पर बर वक्त जमा करवाने के बावजूद 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार है। मुनीम जफर ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू करती है, जिसके बायस तलबा और तालिबात शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुनीम जफर के मुताबिक कॉपियाँ वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, वफाकी वज़ीर तवानाई और पावर डिवीजन और दीगर को भी इरसाल करती हैं। शहर कायद में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाएं ना मिलने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर कमिश्नर कराची ने नोटिस ले लिया। दवाओं की मार्केट में दस्तयाबी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सूरत हाल पर शहरी कहते हैं कि अमराज क़ल्ब की कई दवाएं ना मिलने से जान को खतरात लाहक हो गए। जो अद्वियात मार्केट में दस्तयाब हैं उनकी मनमानी कीमत वसूल की जाती है। दूसरी तरफ नूरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कादिर नूरानी कहते हैं कि महंगाई की वजह से लोगों के लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया। फ्री मेडिकल कैंप से 3,500 अफराद मुस्तफीद हुए। काविश मेमन की रिपोर्ट। वेलफेयर सोसाइटी का अहसन इकदाम, शहरियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में मरीजों के शुगर, हड्डियों, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट किए गए। चेयरमैन नूरी वेलफेयर सोसाइटी कादिर नूरानी का कहना था कि महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाज का बोझ बर्दाश्त करना किसी के बस में नहीं रहा। यहाँ बोझ इलाका है, गरीब तबका बहुत है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी शुगर 400 है, 500 है, तो उनके पास टेस्ट कराने के ना पैसे हैं ना दवाइयों के पैसे हैं। इस तरह कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी फ्री था यहाँ पे, BMD टेस्ट होता है हड्डियों का, वो फ्री था यहाँ पे, और लैब टेस्ट तकरीबन सारे फ्री थे। शहरियों ने मुफ्त मेडिकल कैंप के इकदाम को न सिर्फ खुश आइन करार दिया बल्कि हुकूमत की जानिब से भी ऐसी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया गया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर डॉक्टर हम्माद और काउंसल जनरल बकीत अतीक रोमेती ने गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से मुलाकात की। मुलाकात गवर्नर हाउस कराची में हुई। मुलाकात में अमाराती सफ़ीर हम्माद ज़ावी और कराची के काउंसल जनरल बकीत अतीक रोमेती ने शिरकत की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की गई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और मजबूती के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। हम्माद ज़ावी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात बिरादर मुल्क पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है, चाहता है कि पाकिस्तानी मईशत अपने कदमों पर खड़ी हो। UAE हुकूमत पाकिस्तान की मदद के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी है। काउंसल जनरल बकीत अतीक रोमेती ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत जल्द दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान आर्मी और HEC, KRL और पाकिस्तान नेवी ने 2023 नेशनल चैलेंज कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5वीं
पांचवें रोज 4 मैचों का फैसला हुआ। पहले मैच में 19 के 2 और अनीस के 2 और हसन के 1 गोल की बदौलत पाकिस्तान आर्मी ने निम्सो के खिलाफ 0-3 से फतह हासिल की। दूसरे मैच में पाकिस्तान नेवी ने SA फॉर्मर्स को 0-3 से शिकस्त दी। नोमान, फरहानुल्लाह और नवीद ने 1 गोल किया। तीसरे मैच में HEC ने पाका को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल हलीम ने किया। चौथे मैच में KRL ने माशा यूनाइटेड को 4-0 के स्कोर लाइन के साथ शिकस्त दी। KRL की जानिब से शाहजेब, नजीमुल्लाह, वहीद और अली आगा। नापा में विमेन परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल जारी है। रक्कासा निघत चौधरी कहती हैं कि ये फेस्टिवल ख़वातीन के जश्न की दलील है। मज़ीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में और वुमेंस परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का आज गालिबन 11वां रोज़ है और यकीनन आज भी मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंसेस हैं वो यहाँ पर पेश की गई हैं। इसके अलावा मारूफ पॉप म्यूज़िक की जो गुलकारा है नाज़िया हसन को यहाँ पर ट्रिब्यूट भी जो है वो पेश किया गया है। मारूफ कह सकते हैं कि रक्सनिगार हैं निगत चौधरी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। हम आपकी इनसे बात कराते हैं। निगत, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही हैं और हमने देखा कि हाल ही में आपने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस जो है इसमें पेश की है। क्या कहना चाहेंगी, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं कितनी आपकी नज़र में खुशाइन है? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है वुमेन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल और वो भी एक रवायत बन जाएगी। एंड आई थिंक फॉर विमेन, जिस तरह की औरतों को अपनी आवाज़ उठाने का, अपना फ़न दिखाने का, एंड इट्स अ स्पेशल स्पेस, एक सेक्रेट स्पेस बनता ना एक औरत के लिए। फिर वो जो करना चाहे, जो इजहार करना चाह रही हैं, तो वो आई थिंक शोकेस कर रही हैं। तो ये तो बड़ी एक अच्छी रवायत बनती जाएगी। मुझे लगता है कि होना चाहिए और वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं। आज मेरी एक फ़िल्म थी छोटी सी, वो मैंने दिखाई। मेरी परफॉर्मेंस 10 तारीख को है और क्लोजिंग पे। तो हर किस्म के देखो ना, आपको वोकलिस्ट, आपको ट्रिब्यूट्स, कितनी औरतों ने कंट्रीब्यूशन की। औरत की कंट्रीब्यूशन जो एक नेशन में, एक सोसाइटी में, उसको सेलिब्रेट करना भी, वुमेन इज़ अ परफॉर्मर। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेव गज़ा मुहिम के सिलसिले में CVU क्लॉक टावर पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फ़लस्तीनी परचम सरबलंद और साहिल की सफाई की गई। कराची का साहिल, जो आम तौर पर आवाम की तफरीह के लिए एक नुमाया हैसियत रखता है, जहां हर वक्त आवाम का शोर गुल सुनाई देता है, वहां इतवार के दिन गजा के मजलूमों की हिमायत में नारे सुनाई दिए। CVO के मकाम पर गजा बचाओ मुहिम के तहत होने वाली तकरीब का मकसद गजा के मजलूमों की हिमायत और सिहोनी मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। We have this really big 100-meter flag of Palestine और उस फ्लैग को फिर हम ओपन करेंगे एंड वी वुड काइंड ऑफ मार्च विद दैट फ्लैग। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इसराइल का बाइकआउट किया जाए नेशनल लेवल पे और सूबाई लेवल पे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए स्मूथ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ओपन किया जाए। शुरका ने कहा कि इसराइल की नस्ल कुशी पर मबनी जंग के इख्तिताम का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों के दिल जो है फ़लस्तीनियों के साथ जमे हुए हैं और ये चीज़ कभी भी तोड़ नहीं सकते। हमारे कायद ने इस मुल्क जब बनाया था, उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ हमायत की और आज भी 75 ईयर्स लेटर हम आज भी खड़े हुए उनके साथ। हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन को उजागर करने के लिए भरपूर कोशिशें करे और सफारती सतह पर इस मसले पर एक भरपूर किस्म की आवाज़ उठाए। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और साहिल की सफाई भी की गई। शहर कायद में शदीद गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने मौसम की शिद्दत में कमी पर छुट्टी का मज़ा दोबारा करने के लिए CVU का रुख कर लिया। कोई तेज़ हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा तो किसी ने साहिल पर लहरों से खूब छेड़छाड़ की। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। का दिन हो और कराची के शहरी सैरो तफरी के लिए ना निकलें, ये मुमकिन नहीं। गर्मी के इस मौसम में साहिल से बेहतर तफरीगा कोई हो ही नहीं सकती। बादल छाए हों या तेज धूप, शहरियों की बड़ी तादाद समंदर के मजे लेने CVU का रुख जरूर करती है। आज भी शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर बच्चों और बुजुर्ग के साथ एंजॉय करती नजर आई। शहरियों का कहना था छुट्टी को एंजॉय करने के लिए साहिल सबसे अच्छी जगह है। मैं नवाबशाह से आया हूँ। अच्छा जी, एंजॉय करने के लिए, खाली कराची का CVO देखने एंजॉय के लिए। हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आग बरसती है। फैमिली के साथ आए, बहुत एंजॉय करने, मतलब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी है
तो इसलिए पिकनिक पे आए। साहिल पर कोई लहरों से खेलता दिखाई दिया तो किसी ने घुड़सवारी और मोटर कार के मजे लिए। सीवीओ पर चटपटे खाने भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन हैदर अली के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। और चंद मिनटों का सफ़र हो या घंटों का, समंदर में हमेशा एडवेंचर लगता है। किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए चंद मिनटों का सफ़र दिलकश भी है और मुश्किल भी। कश्ती में क्या जाने वाला ये सफ़र कैसे तय किया जाता है, बता रही हैं आयमा खान अपनी रिपोर्ट में। रोड से किमाड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, ये गाना आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ होगा और कई साल पहले जो है वो ये गाना रिलीज़ हुआ था, लेकिन आज भी जब भी किमाड़ी का जिक्र आता है तो ये गाना भी जहन में याद आ जाता है। इस वक्त मैं किमाड़ी जेटी पर मौजूद हूँ और यहाँ से जो है वो मनोड़ा का सफ़र कश्ती में किया जाता है। आज हम आपको किमाड़ी से मनोड़ा का सफ़र कश्ती में कराएंगे, तो आइए मेरे साथ। किमाड़ी से मनोड़ा तक जाने के सफ़र की इब्तिदा होती है खुश्की से साहिल तक उतरती इन सीढ़ियों से। किमाड़ी से कराची के करीबी तफरीही जजीरे मनोड़ा जाने के लिए कश्तियों में सवार हुआ जाता है। सीढ़ियों से बचकर नीचे आ भी गए तो पानी पर बल खाती कश्तियों में सवार होना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। जरा सा लड़खड़ाए नहीं कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ एहतियात लाजमी है। किमाड़ी से मनोड़ा तक कश्ती के जरिए तय किया जाने वाला ये सफर चंद मिनटों का है। इस वक्त मैं जो है वो एक छोटी लॉन्च में बैठ चुकी हूँ और तकरीबन 15 मिनट का सफर है किमाड़ी से मनोड़ा तक का। ये सफर कैसे तय होता है अभी हम आपको मजीद दिखाएंगे। किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सफर के शौकीन अफराद जेटी का रुख करते हैं। इस हवाले से कश्ती चलाने वाले अफराद का कहना है कि रोजाना बहुत से लोगों को एक जेटी से दूसरी जेटी लेकर जाते हैं। ये सफर बहुत रिस्की भी है। ये बाजी हम लोग लेके जाते हैं, इसमें 50-60 बंदे लेके जाते हैं बोट में। जो अपने जो सर्वे के बंदे होते हैं ना वो लेके जाते हैं। हम लोग की कोई ताकत नहीं है, हम लोग तो बस ड्राइविंग करते हैं, आगे पीछे सबको नज़र रखते हैं सबके ऊपर कि कोई बंदा कोई मेंटल भी आता है तो उनको भी कवर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। हम कश्ती में बैठ चुके हैं और हिचकोले खाती हुई कश्ती समंदर में जो चल रही है इसमें एक डर तो लग रहा है लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। शौक का कोई मोल नहीं होता, ये बात शहरियों का किमाड़ी जेटी पर रश देखकर दुरुस्त साबित होती है। शहरी कहते हैं तफरीह के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। कश्ती का सफ़र बहुत मज़ेदार है। घूमने फिरने का शौक हो तो फिर इंसान को यही सोचता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। रिक्सी तो है क्योंकि पानी है। कश्ती में सफ़र अच्छा होता है, एंजॉय वाला होता है, खास करके ख़वातीन तो डरती हैं। साहिल पर हवाओं से खेलती लहरों और दूर दूर तक फैले समंदर को देखने का शौक सदियों से इंसानी दिलचस्पी की इंतहा को छूता आया है। कराची के साहिलों से जजीरे बहरे अरब को देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लाखों और करोड़ों अफराद कराची के साहिलों का रुख करते हैं, जिसके बायस समंदर की रौनकें बहाल हैं। हमने तो अपना सफ़र तय कर लिया। किमाड़ी से मनोड़ा तक का ये सफ़र जहाँ खूबसूरत और दिल फरेब है, कश्ती में बैठकर समंदर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, वहीं ये सफ़र जो है वो रिस्की भी है। जबकि लेकिन घूमने फिरने का शौक़ हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा।